So good morning once again to all of you, and today we are going to start our semester 2. Okay, hopefully we people will get the more success compared with semester 1. Many of the students have struggled a lot in the first semester with math subject. So now onwards I hope you people will work hard and you will get the more success compared with the semester 1. My planning I have posted just now on the group, and you people will get it by the day end whenever you get the mobile from your parents. So the planning, according to the planning, today we are going to start chapter number 6, which is integers. Currently no need to open your textbook, close it and pay your attention to me. I have, you keep it with you because you need afterwards. Okay, so close your book and pay your attention over here. According to the first semester style, I tried to give you the page-wise explanation of the textbook, and we had taken more time for the explanation. But this time, I am going to change the style. I will explain you the needed points related to the topic, and then we people have to complete the exercises of the textbook. Okay, sit properly everybody and pay your attention to me. If you are doing any other work, stop it and pay attention to me. So basically, before moving ahead with the definition of integers, let us recall our knowledge about the numbers. And these numbers words you are learning from KG section. Okay, from KG section you are learning these numbers word. And whenever the word numbers comes in our mind, we get the idea. It starts from 0 to infinite. There is no last number. Okay, because each and every number has its successor. Okay, very next number is exists there. कोई भी नंबर ले लो आप, 5 digit, 10 digit, 12 digit, कोई भी नंबर ले लो, it has its successor. Means it is not the last one number. Got it? So there is no end of the number list. It is infinitely extended. Okay. Then after current year we had learned about the definition of natural numbers. And in this definition, natural number starts from number 1. It starts from number 1, 2, 3, 4, 5. And it is also infinite. This list is also infinite. Then we had learned about whole numbers. And whole numbers starts from 0. Okay. 0, then 1, 2, 3, 4. Then infinite. So all these things we had learned previously, current year or in the past years. So numbers, natural numbers and whole numbers. If we put all these numbers all together, what will happen? We can make the list that 0, 1, 2, 3, 4, 5. And this list is same as whole numbers list. Okay. To show you the things better way, in your textbook, 0, there is a geometrical representation also. 0 is represented with this 0. Okay, natural numbers are representing with the rectangle box. And whole numbers are, natural numbers are representing in this form. Why? Because 0 is not there in the natural number. And whole number is representing with the box. Means what? This 0 is also included in it. Okay. Now, many examples are given in your textbook to understand, to clarify the concept about the integers. A simple concept if we take, then sometimes we listen that in the Canada the temperature is minus 20 degrees. In America sometimes temperature is minus 10 degrees. So these minus words we had heard many times. For example, somebody is doing business
and due to this COVID-19, we had experienced a bad, very, very bad experience. That they had a big loss in the business. Now they are not on the track. To bring that business on the track, they need hard work. Means loss means what? Whatever we have from that, if something is gone away, okay, if something is gone away or something is decreased, then we can say that there is a loss. Okay, same way, the temperature in the Canada is minus 20 degree. Minus 20 degree means what? It is too cool to survive over there. है ना? In India also, when we go to the hill stations, we feel that type of experience. Okay, so these all things you people have many times heard these words. Okay, minus 2 degree, minus 5 degree, minus 25 degrees likewise. So how this negative minus number exists, that we have to understand. So minus number exists likewise कि when we have something, suppose I have rupees 20 and I go to the shop to bring something, and when I ask them, the shopkeeper, can you give me this and that and this, and finally I try to pay the amount and the person asks me, okay, you need to pay me 25, not the 20. Okay, what is the example I have given? How much money I have? Rupees 20. And whatever the material I have taken, its bill is rupees 20. So what is the difference between 25 and 5? क्या difference है? 5 rupees is less with me. Okay, if I want to buy the things, all the things which I have ordered, then I have to pay rupees 25. But I have only rupees 20. So how much less amount is there? Rupees 5. Rupees 5 is less. Rupees 5 is less with me. This word less, how to show it? If I write only 5, then I could not say is it more or less. है ना, हम नहीं बोल सकते. सिर्फ 5 लिखे तो सिर्फ 5 से क्या पता चलेगा कि I have 5 rupees more or I have 5 rupees less. So for to show these type of things, these negative numbers arise or exist. So how the negative numbers represent? For that, you people have learned many things in the maths, and from the beginning, from standard first, you are learning about the number line. If you have remembered, याद है सबको? Number line याद है? The word is number line. क्या word है? Number line. And line concept is clear in your mind, I hope so. Line is extended both the side infinitely. It has no end points. मानी ये ऐसी geometrical figure है which has no end points. और that's why number को show करने के लिए line ली गई है, not the line segment, not the ray. है ना? Because line segment has end points. Ray has one end points. तो number has no end points. Number is infinitely extended. There is no last number. That's why number represent करने के लिए कौन सी geometrical figure use की है? Line. Line has no end points, and number also has no end. Okay. Whenever we show the number on the number line, we put a dot to represent any number. Suppose for example, I have taken at the middle of the number line, which is line I have taken, so 0. It is not O, it is 0. We are presenting numbers on the line. So this symbol is representing 0. Whenever we represent the numbers on the right hand side of the 0, okay, so always we write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Got it?
over here with this number I have not added any type of symbol, है ना? So if the no symbol is added with the number, then that number is considered as a positive number. अगर कोई नंबर के साथ कोई भी सिंबल ऐड नहीं किया गया है तो वो नंबर को पॉजिटिव नंबर बोला जाता है, ठीक है? और नाउ इफ द सेम वे आई पुट द नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड, यहाँ पे मैं जो नंबर्स लिखूंगी उसको मैं बताऊंगी इस तरह से -1 -2 -5 -6 and negative number. So all these, to read the number we use minus word, but we have prefixed the sign minus with it, and these all numbers are known as negative number. ये numbers को हम क्या बोलते हैं? Negative numbers. और ये numbers को हम क्या बोलते हैं? Positive numbers. Positive numbers. In your textbook, the positive numbers are represented with the positive sign. Means अगर +4 को इंडिकेट किया गया है तो प्लस लिखा है, माइनस को इंडिकेट किया गया है तो माइनस लिखा है. माइनस के लिए एसेंशियल है कि आप नेगेटिव साइन लिखो, बट प्लस के लिए एसेंशियल नहीं है कि आप पॉजिटिव साइन लिखो. If no sign is prefixed with the number, then also it is considered as a positive number. Got it? मानिए अगर नंबर के साथ कोई साइन नहीं दिया गया है तो उसको पॉजिटिव नंबर माना जाता है, और अगर नेगेटिव नंबर हमें दिखाना है तो वी हैव टू ऐड माइनस साइन विद द नंबर. गॉट इट? तो ये होगी नंबर लाइन. अभी नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मैनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द इंटीजर्स. पे योर अटेंशन प्रॉपर्ली. ओके, नाउ whenever we move from the left to right, 0 से हम राइट साइड पे जाते हैं ये डायरेक्शन में, तो ऑलवेज ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर. व्हाई इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स व्हाट? To बढ़ना. स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. ओके, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट माने जो फर्स्ट नंबर हम लेते हैं वो स्मॉल है, और जब मूव अहेड होते हैं तो बिग नंबर की ओर हम जाते हैं. और व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो कौन सा ऑर्डर आएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर. और डिक्रीजिंग ऑर्डर माने व्हाट? बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट. सो मीन्स व्हाट? इफ यू नोटिस तो 0 से हम राइट साइड मूव होते हैं तो हमको बिगेस्ट नंबर मिलते हैं, और 0 से लेफ्ट साइड मूव होते हैं तो मानी व्हाट? यहाँ पे देखो आप तो 1 इज स्मॉलर देन 5, बट -1 इज ग्रेटर देन -5. -1 is greater than -5. Why? Because -1 is on the right side of -5. So to understand the integer, the number line is very helpful. Whenever the comparison of two numbers will be asked from this chapter, so you people have to keep the number line in your mind. Okay, the number comes before the number or after the number. Or we can say that the number comes left side of the number or right side of the number. If left side it comes, then it is smaller, and if right side it comes, then it is bigger. Got it? So ये जो पूरा ग्रुप बना कौन से नंबर का? तो नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0. ये जो पूरा ग्रुप बना उसे हम क्या बोलते हैं? ओके. और ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? ये नेचुरल नंबर्स इसमें आ गए, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स. होल नंबर्स इसमें आ गए, स्टार्ट्स फ्रॉम 0 आ गया इसमें. ठीक है,
तो अभी इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करें? तो इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से एक आपको सिंबलाइज किया गया है आपकी टेक्स्ट को, ठीक है। इसके अंदर क्या आ गया? तो नेगेटिव नंबर्स जो है ना, नेगेटिव नंबर्स, ये नेगेटिव नंबर्स का सिंबल जो है वो इस तरह से दिया गया है, ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक आ गया ट्रायंगल, मानी नेगेटिव नंबर आ गए, ये पूरा आउटसाइड बॉर्डर जो है वो इंटीजर रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर ट्रायंगल मानी नेगेटिव नंबर्स आ गए, बराबर है। फिर उसके अंदर क्या आया? तो होल नंबर आ गया, बराबर, ये होल नंबर आ गया। फिर उसके अंदर क्या आ गया? नेचुरल नंबर आ गया, और ये क्या आ गया? जीरो। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। जब भी आपको इंटीजर्स याद रखना है कि इंटीजर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद दिस सिंबल, होल नंबर विद रेक्टेंगल, जीरो विद ओ, एंड नेगेटिव नंबर्स विद ट्रायंगल। ओके, सो ट्रायंगल कम्स फर्स्ट, देन आ गया होल नंबर, देन आ गया नेचुरल नंबर विद जीरो। ओके, सो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। मानी इंटीजर में क्या क्या आता है? इंटीजर में ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। होल नंबर जब बोलते हैं तो जीरो आ ही गया था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे अलग से दिखाया गया। और एक बात, जीरो हैज नो साइन, zero has No sign. It is not a negative nor a Positive. Okay, तो जीरो के पास कोई भी साइन नहीं है। जीरो मीन्स जीरो। क्यों नहीं है? वो किसी को दिमाग में आता है क्यों नहीं है? Why zero has no sign? वो है ही वो जैसा Because zero has no value if it is alone. Zero has no value if it is alone, है ना। बाकी के सारे नंबर के पास वैल्यू है, जीरो के पास तब भी वैल्यू आती है जब वो किसी नंबर के राइट साइड जुड़ता है। अगर मैं 2 लिखूं, 2 के आगे जीरो लिखूं, इट हैज नो वैल्यू, बट 2 के बाद जीरो लिखूं, इट हैज वैल्यू। गॉट इट? दूसरी बात, why zero not needs any type of symbol? Because जीरो को मैं किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करूं या जीरो को मैं किसी भी नंबर में ऐड करूं, number remains same. That's why we can say that zero alone has no value. जीरो के पास अगर वो अकेला है तो कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए जीरो के आगे माइनस लगाओ कि प्लस लगाओ, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव। क्लियर हो गया? तीसरी बात, whenever you draw the number line at that time, if you have noticed, I have tried to put the same distance between two dots. आपने अगर नोटिस किया हो, वास्तव में नॉट पेइंग अटेंशन, आपने अगर नोटिस किया हो तो हर एक नंबर के बीच का डिस्टेंस मैंने सेम रखने की कोशिश की है। ये जरूरी है whenever you draw the number line. Why it is essential? Because वो भी समझ ले, 1 में कितना ऐड करोगे तो 2 आएगा, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5 plus 1 6 मानी हर एक नंबर के अंदर 1 1 1 ऐड होता है। मानी डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1, बराबर। अगर हर एक का डिफरेंस सेम है तो ये डिस्टेंस भी सेम होना जरूरी है। सो इट इज कंपल्सरी whenever you draw the number 9 you have to put the dots at the equidistance. डॉट्स जो है वो हर एक डॉट्स के बीच का डिस्टेंस सेम रहना जरूरी। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? क्लियर हो सब?
समझ में आ गया व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर इंक्लूड्स zero, positive numbers and negative numbers. The set of positive numbers means 1 onwards are known as natural numbers. The set of positive numbers with 0 is known as whole numbers. So we can say that natural numbers, whole numbers, 0 and negative numbers are there in the set of integers. Got it? तो integers में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नंबर। ओके, ये 4 सिंबल याद रखो। ये वाला जो क्या रिप्रेजेंट करता है? क्यों यहाँ पे ये कर्व दे दिया? क्योंकि वहाँ पे जीरो नहीं आया, यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जीरो इटसेल्फ एंड नेगेटिव नंबर के लिए ट्रायंगल। और ये सब इंक्लूड करके जो फिगर बनती है वो रिप्रेजेंट करती है इंटीजर। यहाँ पे हम देखें तो ये आउटसाइड बॉर्डर रिप्रेजेंट कर रही है इंटीजर। अब इंटीजर्स में क्या क्या आया? नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर ये आ गया होल नंबर, जीरो, फिर ये आ गया पॉजिटिव नंबर एंड ये आ गया जीरो। तो इंटीजर्स में 0 आ गया, होल नंबर आ गए, नेचुरल नंबर आ गए, गॉट इट? क्लियर हो यहाँ तक? नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक ओपन करो और कौन सी पेज से शुरू होता है ये चैप्टर? 130। वहाँ पे जिसको भी टाइम मिले ये टेक्स्ट बुक रिफर कर सकता है। लेकिन अभी आप आगे बढ़ो, ट्राई दिस। कहाँ पे? पहले 115 नंबर के पेज पे 2 बॉक्सेस दिए हैं, ये वाले 115, ठीक है? तो वो ओपन करो एंड कंप्लीट दिस बॉक्सेस। पेज नंबर 115 देखो, व्हाट इज गिवन ओवर हियर इन द फर्स्ट वन बॉक्स? सक्सेसर। सक्सेसर का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? Successor means one more and predecessor means one less. चलो, तो फर्स्ट कौन सा दिया आपको? अभी टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है, नोटबुक में नो नीड टू राइट। 10 नंबर 10 दिया गया है। सक्सेसर क्या दिया? 11। लिखो 11। सभी कंप्लीट करो, फिर मैं आंसर बोलती हूँ। खुद कंप्लीट करो पूरा बॉक्स। You complete it. इसका हो जाए, नेक्स्ट में प्रेडिसेसर है वो भी कंप्लीट करो। प्रेडिसेसर मीन्स 1 लेस। जो भी स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक नहीं लाए हैं उनको आज घर जाके कंप्लीट करना है। क्यों टेक्स्ट बुक नहीं लाए भाई? चलो डन? आई एम गोइंग टू आंसर यू। द फर्स्ट वन 10, उसका सक्सेसर 11, 8 उसका सक्सेसर -5। जिसको भी प्लस माइनस में प्रॉब्लम हो वो नंबर लाइन दिमाग में रखिए। सक्सेसर में हमको एक स्टेप आगे बढ़ना है, राइट साइड। तो -5 का क्या आया? -3 -2 0 ये हो गया फर्स्ट वन ब्लॉक, सक्सेसर वाला। देन प्रेडिसेसर 10 है, 9 8 है, 7। अभी लेफ्ट साइड जाना है हमको प्रेडिसेसर वाला। 5 है तो 4, 3 है तो -1। तो लास्ट में जब आप लिखो -1 उसमें माइनस साइन आनी जरूरी है। चलो टर्न योर पेज, पेज नंबर 116 पे ट्राई दिस है। मिला आपको? सॉरी पहले ऊपर एक टेबल है वो कंप्लीट करना है। टेबल में प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट मानी क्या? कुछ ऐड होता है, हमारे पास जो है उसमें ऐड होता है। एंड लॉस मानी क्या? हमारे पास जो है उसमें से कुछ कट होता है। तो फर्स्ट है
हमें प्रॉफिट हुआ 150, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? माइनस प्रॉफिट हुआ प्लस 150, वहां पे आएगा ब्लैंक जो दी है लास्ट कॉलम में, वहां पे प्लस 150 लिखो। प्लस साइन लिखना जरूरी है क्योंकि प्रॉफिट लिखाना है हमें, ठीक है। सिर्फ 150 लिखोगे तो प्रॉफिट और लॉस पता नहीं चलेगा, दैट्स व्हाई प्लस लिखना जरूरी है। नेक्स्ट राइस चलो कंप्लीट करो पूरा टेबल। जहाँ प्रॉफिट है वहाँ प्लस लिखो, लॉस है वहाँ माइनस लिखो। चलो नेक्स्ट ट्राई दिस वाला टेबल जो है वो अभी उसमें राइट द फॉलोइंग नंबर्स विद एप्रोप्रिएट साइंस। तो अभी नोटबुक में किसी को नहीं लिखना, अभी पे योर अटेंशन इन द टेक्स्ट बुक ओनली। 100 मीटर बिलो सी लेवल। अभी सी लेवल मीन्स व्हाट? आप सी शोर को विजिट करते हो, बराबर है, आप जाते हो ना, तो वो जो वाटर लेवल है वो सी लेवल है। सी लेवल, लेकिन वो उसके अंदर भी डेप्थ में भी पानी है, हमें पता है ना, ये अंदर भी पानी है। तो कितना डाउन जाना है? 100 मीटर बिलो। तो क्या आएगा? 100 मीटर अबव आएगा। उसका अपोजिट क्या आएगा? 100 मीटर। तो आप वहां पे लिखो 100 मीटर अबव। बिलो की जगह अबव, बिलो की जगह पे अबव आएगा उसका आंसर, बराबर है। चलो देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बिलो नहीं, अबव, यहाँ पे तो अबव, हाँ, या माने उसका अपोजिट लिखना है हमें, बिलो, बट उसको अप्रोप्रिएट साइन से लिखना है हमें। तो हमें कोई अबव के बिलो के नहीं जाना है ना, साइन देना है। तो फर्स्ट में आएगा -100 मीटर, फर्स्ट में आएगा -100 मीटर क्योंकि बिलो जाना है। अबव नहीं लिखना, -100 मीटर आएगा। फर्स्ट का आंसर क्या आया? -100 मीटर प्लस 25 डिग्री सेल्सियस। सी लिखना साथ में, 25 डिग्री सेल्सियस। अबव मानी प्लस, 15 डिग्री सेल्सियस। Any five number less than 0. हाँ? Any five number less than 0. वो तो लास्ट में जाते हैं ना। -1. थर्ड आया 15 डिग्री सेल्सियस बिलो, -15 डिग्री सेल्सियस। -90 degree Celsius. एंड लास्ट में एनी 5 नंबर्स लेस देन 0। तो कोई भी नंबर आप 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट का लिख सकते हो, लेकिन विद माइनस साइन। वहां पे कोई भी एग्जांपल लिख दो, 5 एग्जांपल, -1, -2, -3, कोई भी 2 डिजिट नंबर भी वहां आ सकता है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कोई भी, बट क्या आएगा उससे? माइनस साइन आनी चाहिए। हो गया कंप्लीट। चलो देन मूव अहेड। चल यहाँ पे एक पेज नंबर 118 पे ट्राई दीज है, ट्राई दीज है। मार्क -3, 7, -4, -8, -1 एंड -3 ऑन द नंबर लाइन। तो वो तो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे एक ही नंबर लाइन ड्रॉ करना है आपको, फिर वहाँ पे -3, तो -3 को राउंड करना है ऐसे। कैसे? ऐसे नंबर लाइन आपको नोटबुक में ड्रॉ करना पड़ेगा ये, बराबर। ये पूरी नंबर लाइन ले लेना, बराबर। सेम डिस्टेंस पे पॉइंट दिखा देना। फिर फर्स्ट नंबर कौन सा है? -3, तो ये -3 के ऊपर आपको ऐसे सर्कल करना है। तो -3 हो गया। फिर 7, तो 7 पे सर्कल करो। फिर -4, तो -4 पे सर्कल करो। -8, तो -8 यहाँ आ जाएगा।
उस पे सर्कल करो। मेरे में -3 है, आपके अंदर जो हो वो लेना। फिर -1 तो उसे इस तरह से सर्कल करो एंड +3। गॉट इट? तो इन दिस वे आपको एक ही नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और हर एक के ऊपर जो भी नंबर पूछा गया है उस पे n सर्कल करना। क्लियर? कर लोगे? चलो, देन आफ्टर द ट्राई दिस ऑफ 119। यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन। तो ग्रेटर देन, ये ग्रेटर दिखाता है, बड़ा नंबर, एंड ये लेस देन। चलो पहले कंप्लीट करो ये बॉक्सेस, फिर मैं डिस्कस करती हूँ आपसे। खुद कंप्लीट करो। 6 बॉक्सेस आर देयर, वहां पे ग्रेटर देन और लेस देन साइन रखो। जिसका बाकी है उसको कंप्लीट करने दें। हो गया? चलो, फर्स्ट जो है 0 बॉक्स एंड -8, क्या आएगा? 0 अरे भाई ये सिंबल रखना है क्या? -8 और 0 कैसे? हाँ, सिंबल रखो बॉक्स में। हो गया, ऐसा बोल दिया। 0 फिर बॉक्स एंड -8 तो ग्रेटर आया। क्यों ग्रेटर आया? बिकॉज 0 इज राइट साइड ऑफ -8, तो वो ग्रेटर है। तो ग्रेटर के लिए ये ओपन साइड दिखाओगे तो वो ग्रेटर सिंबल रिप्रेजेंट करता है। फिर नेक्स्ट 5 बॉक्स -5, फिर 0 लेस, ठीक है। फिर -1 तो वो क्या आ जाएगा? ग्रेटर। फिर 11 तो वो क्या आया? लेस, एंड -10 लेस। Clear? Now from this, many of the sentences they have written here. So from the above exercises, Rohini arrived at the following conclusion. And at the last में पूछा गया है कि do you agree with her? Give examples. तो हम 1 by 1 देखते चले और एग्जाम्पल्स पास में लिखते चले। आपको ये एक्सरसाइज नोटबुक में कंप्लीट करनी है। अभी टेक्स्ट बुक में कर लो, घर से नोटबुक में करना है। चलो, फर्स्ट सेंटेंस कौन पढ़ेगा? नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 पढ़ो। Every positive integer is larger than every negative integer. Every positive integer is larger than negative integer. Agree? Yes. Agree हो ना सब? ये एग्जाम्पल्स जो देने हैं वो आप इसमें से भी ले सकते हो या खुद के भी बना सकते हो। तो आप यहाँ पे खुद पे 2 एग्जाम्पल लिख दो। सपोज फॉर एग्जाम्पल 8 is greater than -3, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं कि 2 is greater than -2। ये 2 एग्जाम्पल हो गए। वो फर्स्ट सेंटेंस के पास लिख दो। कंप्लीट। नंबर 2, 0 is less than every positive integer. ओके, 0 is less than every positive integer. अग्री? Yes. अग्री हो ना सब? Yes. इसके एग्जाम्पल लिखो कि 0 जो है वो लेस है किससे? सपोज 9 से। 0 जो है वो लेस है किससे? सपोज 21 से। कोई भी पॉजिटिव नंबर आप लिख सकते हैं, बराबर। ये 2 एग्जाम्पल आप सेकेंड स्टेटमेंट जो है उसके पास लिख दो, तो घर से कंप्लीट करने हैं। Yes. ये 2 एग्जाम्पल, ठीक है। चलो, फिर नेक्स्ट नंबर 3, 0 is larger than every negative integer. इंटीजर Yes. ट्रू है, Yes. बराबर। तो कैसे एग्जाम्पल लिख दो? -1.
0 greater than minus 3, 0 greater than minus 15. कोई भी लिख सकते हो लेकिन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। क्लियर हो? चलो नेक्स्ट। मैम 0 is neither a negative integer nor a positive integer 0 is not a negative nor a positive. यहाँ पे कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत। चलो नेक्स्ट। Father, a number from 0 on the right larger is its Larger is its value. Yes. Same number. Farther from 0 to right side, we get the greater number. Okay. यहाँ पे आप ये सेम एग्जाम्पल ले सकते हो ये वाली, या तो उल्टा लिखो कि 9 is greater than 0, 10 is greater than 0. समझ आया? चलो in the last one sentence. and further a number from 0 on the left smaller is Smaller is its value. Yes. तो यहाँ पे आप लिखो क्या लिखोगे? -2 is smaller than 0, -5 is smaller than 0. और ये एक्सरसाइज आज आपका होमवर्क क्या है? तो ये 118 वाला ट्राई दिस एंड 119 वाला ट्राई दिस दोनों आपको नोटबुक में लिखने हैं। Yes. 118 पे वाला पूरा ऊपर में नंबर लाइन 118 पे ये नंबर लाइन ड्रॉ करके इस तरह से आपको नंबर एन सर्कल करना है। यस मैम 118 पे ऊपर है ऊपर एकदम ऊपर जो हां ये एंड 119 पे आपको ये लास्ट में जो हमने अभी लिखा वो लिखना है। यहाँ तक आज का हमारा प्लानिंग था। पे योर अटेंशन हियर एवरीबॉडी। चैप्टर 6 का हेडिंग देके आपको ये दो एक्सरसाइज आज कंप्लीट करनी क्लियर हो? कल हम 6.1 कंटिन्यू करेंगे। यस मैम